video of work energy theorem. So we are done with part A of your chapter. So we will be starting with part B. So what we did in part A is what we discussed about work and energy, different types of energy, like different units of energy, heat energy में होता है या फिर electron energy, ठीक है, electron volt, and we discuss everything, right? Now in this part of the video, we're going to talk about what different forms of energy, ठीक है, कौन से forms of energy है, ठीक है, there are. Now we'll discuss about what exactly ये क्या है. Now in this video, we'll discuss about what your mechanical energy, ठीक है. The topic is what your mechanical energy. Mechanical energy. Now mechanical energy का मतलब क्या है, ठीक है? Energy which possessed during a rest or during a motion. So the energy by a body, okay, which a body possessed is during a rest or during a motion. So whenever body either in a motion or either in the rest, okay, at that time जो भी तुम लोग के पास जो भी वो बॉडी के पास एनर्जी है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. So there are two forms of mechanical energy. Mechanical energy has two types. One is known as the kinetic energy, other is known as your potential energy, ठीक है. So दोनों में से either एक रेस्ट पे रहेगा एक मोशन में रहेगा. So we know that obviously हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी क्या होता है इज एट रेस्ट, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉडी इज एट व्हाट मोशन. समझा नहीं समझा? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है, क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में? विल सी द एनर्जी possessed by body due to its state of rest or state of motion, ठीक है. सो एनर्जी by a body, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी which they possess because of their motion or because of their rest. Yes or no? Either both of this reason, ठीक है. So that's why mechanical energy has two types. First type is your kinetic energy because of motion. Second is potential energy because of its rest, ठीक है. So there are कितना two types of mechanical energy. अभी ये पूरा यूनिट में यही दो एनर्जी के बारे में सीखेंगे, and then we'll talk about the conversion of energy and what law of conservation of what energy, ठीक है. Conversion of energy बाद में देखेंगे. पहले हम लोग देखते हैं कि what is kinetic and what is potential energy. So what I'll do, I'll start with what potential energy. ठीक है. So this topic will start with from what potential energy. Now last video में ऑलरेडी हम लोग ने थोड़ा बहुत हिंट तो लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट बेसिकली व्हेनेवर अ बॉडी, ठीक है, हम लोग को पता है, ठीक है, हम लोगों ने किया था वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या आता था F इनटू S. यस और देन F वी नो, सिंस वी नो, ठीक है, सिंस F इज इक्वल टू क्या है mg और ma, ठीक है, where A is equal to G होना चाहिए. समझा? So can I put F is equal to mg here? So m into G into S. So W is equal to क्या हो गया? M into G into H, where S and H both are what same. So this is your what work done. ठीक है, work done mgh. And हम लोग ने पढ़ा था कि work done is also equal to its potential energy. समझा? तो this is your formula for potential energy. ठीक है, mass, gravity and some particular height. So this is known as your what potential energy. So potential energy are of two types. One because of what gravity, one because of what gravity which is acting on that particular body. उसको बोलते हैं gravitational potential energy. इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं GPE, gravitational potential energy. ठीक है. So energy because of the gravity, ठीक है, acceleration due to gravity जो act कर रहा है पर्टिकुलर बॉडी पे, उसकी वजह से जो एनर्जी वो पोजेस कर रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट बेसिकली, अगर लेट्स से, ठीक है, ओके, आई ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट. या सो डेफिनेशन क्या पोटेंशियल एनर्जी का? आई ड्रॉ द डायग्राम नाउ. ओके, वेट. सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंजिंग पोजीशन, ठीक है. डेफिनेशन सुनो, चेंज इन पोजीशन, कि उसका पोजीशन चेंज होगा और उस बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, वो उस एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. अभी तुम लोगों को पता है कि वर्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कितना कैपेसिटी है उसके पास, कितना अंदर. लेट्स से इफ आई गिव एग्जांपल कि देयर इज अ बॉय, ठीक है, उसके पास पोटेंशियल है 95% स्कोर करने का, ठीक है, इन 10th स्टैंडर्ड ही कैन स्कोर 95%, ठीक है. हम लोग को पता है वो पोटेंशियल है, क्यों? बिकॉज वो इतना हार्ड वर्किंग है, ठीक है, वो इतना स्मार्ट है, उतना शार्प है, ठीक है, वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, सो दैट ही कैन स्कोर 95%. दैट मींस उसका पोटेंशियल है, ही हैज दैट इनसाइड हिम. यस और नो? सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि एक बॉडी है जिसके पास क्या है? एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी उसके इनसाइड है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी है. अभी वो स्टोर्ड एनर्जी चेंज होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन. अभी सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ बोलूंगा, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को
यहां से लेके मैं एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गया, ठीक है, मैंने इतना डिस्टेंस क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, डिस्टेंस लेट से मैं बोलूंगा h, ठीक है, इतना हाइट, मतलब मैं लोअर से ऊपर तक लेके गया, ठीक है, दैट मीन्स उसका पोजीशन चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन, बिकॉज ऑफ दैट उसका पोटेंशियल एनर्जी आइदर इंक्रीज होगा आइदर डिक्रीज होगा, चेंज, लेट्स से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इंक्रीज डिक्रीज बाद में देखेंगे, बट अगर पोजीशन चेंज हो रहा है बॉडी का तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, यस। सो क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, m into g into h. Now this plays a very important role is your gravity, ठीक है, ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसे एक्ट करता है, ग्रेविटी एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू द चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रिलेट करेंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटी था, तो ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ऑलवेज ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, क्यों, एग्जाम्पल ये पेन को ऊपर फेंका, इट इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको नीचे पुल कर रहा है, यस और नो, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑलवेज, यस और नो, सो देयर आर टू थिंग्स यू गाइस हैव टू रिमेंबर दैट whenever अगर मेरा ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है एंड इफ माय बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, ये अपवर्ड्स जा रहा है, दैट मींस इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो जो भी वर्क डन होगा और जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, जीपीई होगा, वो तुम लोग का नेगेटिव होगा, तुम लोग का क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, समझा नहीं समझा, नेगेटिव होगा, वैल्यू विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑब्वियसली मेरा हाइट इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होगा, energy increasing, but it is the value will be negative. Why? Because it is going against the gravity. So your negative value will increase. Yes or no? यहाँ से ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. Yes or no? पोजीशन चेंज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है. अगर हाइट इंक्रीज होगा तो हम लोग को पता है क्या है, जीपीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. मतलब जितना एच इंक्रीज होगा उतना जीपीई भी इंक्रीज होगा. यस, इंक्रीज होगा, करेक्ट है. यहाँ से यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा बिकॉज मेरा हाइट भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बट दैट विल बी द नेगेटिव वैल्यू. रीजन क्या है? बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. मेरा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है. दैट्स व्हाई जो भी वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव वैल्यू. द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज फॉर श्योर बिकॉज हाइट इंक्रीजिंग, बट दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज वर्किंग अगेंस्ट द व्हाट, ग्रेविटी. में ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है. यस नो, दैट इज योर नेगेटिव वैल्यू. आई विल सिमिलर अदर थिंग इफ आई टॉक अबाउट कि इफ अ बॉडी इज कमिंग फ्रॉम व्हाट अप टू डाउन, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है. समझा नहीं समझा? मतलब यहाँ पे हाइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट. ठीक है, हाइट इज डिक्रीजिंग. ये हाइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. इज कमिंग टू व्हाट, अ ग्राउंड लेवल. ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हाइट कितना रहेगा? 0. सो एट दैट टाइम your gravitational potential energy becomes 0 because height decrease हो रहा है. ग्राउंड लेवल पे height is 0. So h का वैल्यू अगर 0 होगा तो entire gravitational potential energy will be 0. Yes or no? समझ रहे हैं? मतलब वो उतना amount of energy उसके पास नहीं रहेगा, 0 रहेगा. So as soon as my height decreases, if a particular body coming from what a particular height to coming what below, ऊपर से नीचे आ रहा है, yes or no? Coming to a ground level, ठीक है, सी लेवल बोलते हैं. ग्राउंड लेवल मतलब सी लेवल, ठीक है, समझा. वो लेवल पे आ रहा है, दैट मींस उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा बिकॉज हाइट डिक्रीज हो रहा है. हाइट डिक्रीज होगा तो जीपी भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा. दैट इज वेरी ऑब्वियस. यस नो, बट पॉजिटिव रहेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स आ रहा है, और जी का भी क्या डाउनवर्ड्स, इट इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो सेम 9th स्टैंडर्ड जो चैप्टर 2 में हम लोग ने पढ़ा कि अगर मेरा ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, अगर बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स तो वहां पे जी का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव. जी का वैल्यू विल बी नेगेटिव. तो बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स तो जी का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे जी का वैल्यू इज पॉजिटिव, जी का वैल्यू इज नेगेटिव. व्हेन यहाँ पे बॉडी इज वन थ्रोन अपवर्ड्स एंड बॉडी इज थ्रोन व्हाट, डाउनवर्ड्स. याद रखो, बिकॉज ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. यस और नो? याद आया तुम लोग को 9th का कंसेप्ट? ठीक है, अभी भी याद नहीं आया तो और एक चीज मैं तुम लोग को याद दिलाता हूं सो दैट यू रिमेंबर कि एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट इज व्हाट, ऑब्वियसली तुम लोग का क्या होगा, इफ योर हाइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. हाइट इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. हाइट डिक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस.
समझा नहीं समझा? और अगर ग्राउंड लेवल पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे इक्वल हो गया तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस देखा था कहाँ पे? 9th स्टैंडर्ड। इफ यू रिमेंबर के v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यस और नो? क्लियर है? तो ये फ्री फॉल का फॉर्मूला है, फ्री फॉल। इफ यू गाइस रिमेंबर, फ्री फॉल के एग्जांपल्स थे, ठीक है। फिर और कौन सा था? v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड थर्ड वाज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीनों देखे थे, राइट? एंड देयर वाज वन मोर फॉर्मूला जहां पे हम लोग चेंज करते थे, यहाँ पे तीनों में नेगेटिव साइन आ जाता था। अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या था? u स्क्वायर माइनस 2as, फिर क्या होता था? u माइनस 80 एंड ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर। रीजन क्या था? दिस वाज अ फ्री फॉल एंड ये बॉडी क्या जा रहा था? गोइंग अपवर्ड। सो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, ये फॉर्मूला आता था पॉजिटिव वाला, एंड व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स वी यूज्ड टू यूज दिस फॉर्मूला, द नेगेटिव साइन। सो दिस इज द सेम चीज। पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे आएगा, तो वहां पे भी ग्रेविटी है, यहाँ पे भी ग्रेविटी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh है, यहाँ पे भी क्या a है? a मतलब हम लोग लिख सकते हैं a is equal to g। When a is equal to g, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। याद आया 9th का कंसेप्ट? यस और नो? सो दिस इज ऑल थिंग, यस और नो, यही डिस्कस करना था। 9th का कंसेप्ट अगर याद है तो बहुत अच्छे से तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो। यस, क्या लिखा है? अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अब बॉडी प्लेस एट अ हाइट अबाउट द ग्राउंड लेवल, ठीक है, और अ वाउंड अप स्प्रिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल एक एक करके करेंगे। पहले ग्राउंड लेवल वाला करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to the force of attraction on the earth on it. So because of the force of attraction of gravity, so जो एनर्जी possessed कर रहा है उसके पास है, that is because of that what acceleration due to gravity और force of attraction. Yes or no? Force of attraction F है ना? F is a force of attraction. What is the value of F? F is equal to mg. Yes or no? Because of force of attraction. So because of mg indirectly, and because of g. Yes or no? We can say that, right? So the gravitational potential of a body is zero. अभी दो टाइम पे क्या होता है? दो टाइम, याद रखो। There are two cases when तुम लोग का क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। केस नंबर 1, जब भी क्या रहेगा? अभी ऑब्वियसली क्या बोला? जब भी हाइट क्या रहेगा तुम लोग का? जीरो। मतलब ये क्या है? ग्राउंड लेवल। क्या है? ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली अभी डिस्कस किया कि ग्राउंड लेवल पे तुम लोग का ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? इट विल बी जीरो। एंड द सेकेंड इज व्हाट? जब भी वो क्या रहेगा? स्पेस में रहेगा, इनफाइनाइट स्पेस, ठीक है। सेकेंड केस जब जीरो रहेगा, जब भी क्या रहेगा? इट इज इन स्पेस। तो सर कैसे? बिकॉज स्पेस में देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या है? अर्थ, हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ के अंदर ही, जैसे अर्थ के बाद स्पेस में, ठीक है, हम लोग स्पेस में, वहां पे कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई जो एस्ट्रोनॉट होते हैं दे फ्लाई, ठीक है, दे फ्लाई। देखा रहेगा तुम लोग ने, ठीक है। तो देयर इज नो ग्रेविटी, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो स्पेस में जैसे तुम लोग का बॉडी गया, देयर इज नो ग्रेविटी एक्टेड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देयर आर टू केसेस, वन एट द ग्राउंड लेवल, मतलब h इक्वल टू जीरो, जब, और यहाँ पे जब h इज इक्वल टू क्या रहेगा? इनफाइनाइट। h विल बी, h क्या रहेगा तुम लोग का? इनफाइनाइट। यस और नो? सो आइदर h इज इनफाइनाइट तभी जीरो है, और h इज जीरो तभी क्या है? जीरो है। यस और नो? समझा? सी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज इनफाइनाइट, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी इज जीरो। समझा? हाइट इनफाइनाइट है, एकदम स्पेस में चला गया, ठीक है। So at a finite distance from the Earth's gravitational pull, energy of the body is negative. ठीक है। So क्या बोला? सी, at a finite distance, Earth gravitational energy के अंदर रहेगा तो भी बॉडी क्या है? नेगेटिव है। सेम चीज बोला ना, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। At a distance of a body from a surface of Earth, ठीक है, at a distance, ये समझो अर्थ सरफेस है, ठीक है। At a distance, यहां से लेके at a distance क्या लिखा है? As the distance of the body from the surface of Earth increases, as the distance increases from the Earth surface, your GPE क्या लिखा है? GPE also will क्या लिखा है? The force of attraction of the Earth decreases। समझा? force of attraction क्या होगा? यहाँ पे force of attraction क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से, अभी तुम लोग को समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये तुम लोग का अर्थ है, समझो, ठीक है। मेरा बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और ऑलवेज सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटी इज मैक्सिमम। जितना मैं दूर जाऊंगा सेंटर ऑफ द अर्थ से एंड मैं क्लोजर जाऊंगा, ये स्पेस है, टुवर्ड्स स्पेस क्लोजर जाऊंगा, मेरा जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम होते जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। समझा? दैट मींस आई एम गोइंग अवे। समझा? नहीं समझा? मतलब मैं ऊपर एयर में जा रहा हूँ। समझा? ये टॉपिक
सो वही पॉइंट है यहाँ पे, क्या बोला है कि ये तुम लोग का सरफेस है, अगर सरफेस से मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ, समझा नहीं समझा, हाइट इंक्रीजिंग, हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, ठीक है, सो योर जीपीई विल इंक्रीज, ठीक है, जीपीई क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू विल बी नेगेटिव एट दिस मोमेंट, योर जीपीई विल बी नेगेटिव, ठीक है, सेम चीज, force of attraction decreases and gravitational potential energy increases, that is the negative value, लिखा है देखो पेज नंबर 29 पे लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट पैराग्राफ, दे हैव मेंशन्ड दैट, ठीक है, समझ रहा है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ये जो रहेगा वैल्यू नेगेटिव रहेगा, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी, मेरा बॉडी ऊपर जा रहा है, ये रहा बॉडी का एरो, ये बॉडी का एरो है, बॉडी ऊपर जा रहा है, और मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड्स है, समझा नहीं समझा, यस और नो, डाउनवर्ड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो मेरा हाइट इंक्रीज हो रहा है, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा जीपी इंक्रीज होगा, बट वो वैल्यू विल बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस, यहाँ पे अगर सेकंड केस ले रहा हूं कि ये सरफेस है एंड बॉडी यहाँ पे इट इज फॉलिंग डाउन, तो हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाइट इज गेटिंग डिक्रीज, नीचे आ रहा मतलब डिक्रीज समझो, तो हाइट इज डिक्रीजिंग, योर एफ इज इंक्रीजिंग, तो योर जीपीई विल डिक्रीज, एंड एट दिस पॉइंट एच इज इक्वल टू 0, सो जीपीई विल बी 0 एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहां तक कुछ ना कुछ रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे ये हाइट पे, ये लेवल पे, ठीक है, अर्थ लेवल पे पहुंचा, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो जीपीई भी क्या हो गया तुम लोग का, 0 हो गया। क्लियर है ये टॉपिक, समझा तुम लोगों को, दिस वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिटेल में पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, नेक्स्ट इज इलास्टिक एनर्जी, जो बहुत इजी है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बचपन में बहुत तुम लोग ने इससे खेला रहेगा, राइट, क्या बोलते हैं अपन, टॉयज से खेला रहेगा, जहाँ पे चाबी वाले टॉयज होते हैं, मैं घुमा रहा हूँ, क्या होता है, जितना घुमाऊंगा और जैसे छोड़ूंगा उतना ही वो मूव करेगा, राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट डिफॉर्मेशन, यहाँ पे बोलते हैं डिफॉर्म हो रहा है, दे आर डिफॉर्मिंग, बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन, यस और नो, जैसे स्प्रिंग डिफॉर्म्ड हो रहा है, जैसे स्प्रिंग डिफॉर्म्ड होगा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है, मैं चाबी को घुमा रहा हूँ, डिफॉर्म्ड हो रहा है शेप, ठीक है, यस और कंप्रेस्ड हो रहा है, अगर मेरा स्प्रिंग ऐसा है, कुछ काइंड ऑफ ऐसा स्प्रिंग है, ये रहा, अगर मैं इसको क्या कर दिया, डिफॉर्म करके ऐसे कर दिया, तो इसका क्या हुआ, शेप चेंज हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, और हाइट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये डिफॉर्म्ड हो गया स्प्रिंग, ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ मेरे, डायग्राम आई नो इतना नहीं है, बट कंसेप्ट समझो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो डिफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन उसके अंदर क्या स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, मैंने की को, चाबी को मारना छोड़ दिया, घुमस में टॉय से घूमेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन अ बॉडी, when an external force is applied on a body, its configuration or we can say shape changes and the property by virtue of body regains its original conformation। अभी ये एक बार किया मैंने, इसको कंप्रेस किया भाई, ये क्या बोलेगा, अरे मेरे को वापस आना है मेरे ओरिजिनल शेप में, ठीक है, मेरा दम घुट रहा है, क्या बोलेगा स्प्रिंग, मेरा दम घुट रहा है भाई, मेरे को वापस आना है, जैसे मैंने यहाँ से उस जैसे चाबी को छोड़ दिया, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, सो ओरिजिनल शेप में आएगा तो जितना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा, yes or no, वो अगेन ओरिजिनल शेप में आने का ट्राई करेगा, yes or no, so डिफॉर्मेशन हुआ, अगेन इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल व्हाट शेप और डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो जो टाइम पे वो कंप्रेस हुआ, डिफॉर्म हुआ, वो टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यस। सो डिफॉर्म स्टेट ड्यू टू द चेंज इन इट्स व्हाट कॉन्फिगरेशन, सो यहाँ पे भी क्या चेंज है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोला था, चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है, तो वापस इसके अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, बट दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर दिस, ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे डिफॉर्मेशन, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने उसका फॉर्मूला कर लिया, W इज इक्वल टू क्या आएगा, mgh, वी हैव डन इट, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट कंक्लूजन करने के लिए जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, स्टिल आई जस्ट गो थ्रू इट, टेक्स्ट बुक में दिया है, thus when the body is thrown vertically upwards it rises up, so the height of the body from the ground increases, hence the potential energy increases, simple, ठीक है। वापस एक बार, upwards height increases, g decreases, yes or no, ठीक है, g decreases, your GPE
इंक्रीजेस, वही चीज बोला है, वापस एक ही चीज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, रिपीट करके, बस और कुछ नहीं है, समझा? सो व्हेन अ बॉडी ऑफ अ मास m, अगर दोनों मास m लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वापस ड्रॉ करता हूँ, ये H1 है और ये H2 है, ठीक है, H2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन H1, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का जो आंसर रहेगा, यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन H1, मतलब ऑब्वियसली तुम लोग का GPE क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस और नो। फिर अगर सेकंड केस में बोलूंगा H1 इज व्हाट, H1 इज ग्रेटर देन H2, GPE क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रोवाइडेड मास क्या है तुम लोग का, कांस्टेंट रखा है, ठीक है, G का वैल्यू तो कांस्टेंट है ही भाई, G तो कांस्टेंट है ही, मास कांस्टेंट रख दिया, तो तुम लोग का अगर हाइट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो GPE क्या होगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, समझा नहीं समझा, ठीक है। इफ योर फाइनल हाइट इज ग्रेटर देन द इनिशियल हाइट, इफ योर फाइनल, ये फाइनल हाइट है ना, यहाँ पे पहुंच गया वो, ये इनिशियल हाइट है, ये H1 है, ये H2 है, राइट, समझा नहीं समझा, ये फाइनल है, इनिशियल है, दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल, ठीक है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज्यादा है, बड़ा है, तो तुम लोग का GPE इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या है, इनिशियल बड़ा है, फाइनल क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, GPE डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं तुम लोग को, दिस इज द कंसेप्ट, बस हो गया अपना कंक्लूजन, किया डन, यस और नो। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे, GPE इज इक्वल टू mg H2 माइनस H1, ये केस 1 हो गया, केस 2 के लिए क्या रहेगा, GPE इज इक्वल टू क्या रहेगा, mg H1 माइनस H2, समझा, ठीक है, क्लियर है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपने को सॉल्व करना है। ऑब्वियसली एनर्जी है, यूनिट क्या रहेगा, जूल्स, ठीक है, डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जूल्स का सब कन्वर्जन ये वो, ठीक है। So the next what we're going to discuss is second type of energy, second mechanical energy, जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन में 2 टाइप है, ठीक है, वी आर डन विद पोटेंशियल, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वर्ड मोशन, ठीक है, जब बॉडी मोशन में है तभी क्या होता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल दो, मूविंग कार, ठीक है, यस और नो, इफ आई एम थ्रोइंग दिस मार्कर टू लेट्स से समवन सिटिंग देयर, ठीक है, उसको जोर से फेंक रहा हूं, सो दिस इज व्हाट बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, कि बॉडी मूविंग है और जो उसके पास एनर्जी जो पजेस कर रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बॉडी इज मूविंग, ठीक है, यस और नो, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, जॉग कर रहे हो, ठीक है, जिम जा रहे हो, यू आर वॉकिंग, यू आर रनिंग, यस और नो, कार इज मूविंग, बाइक इज मूविंग, वॉट एवर इट इज, यस और नो, सर्कुलर पाथ, फैन इज मूविंग, ठीक है, फैन इज मूविंग सर्कुलर, ठीक है, तो वो क्या होगा तुम लोग का डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, बट वो टाइप अलग है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे भी 2 टाइप हैं, बट याद रखो कोई भी एनर्जी अगर मूविंग बॉडी है तो उसके पास एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, समझा। काइनेटिक का मतलब भी होता है मूविंग, समझा, इट हैज सम एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट इज मूविंग, समझा। सो द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its state of motion, वहां पे क्या था, चेंज ऑफ पोजीशन, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन, क्लियर, एग्जांपल्स दिया है, ऑलरेडी बोल दिया, द काइनेटिक एनर्जी possessed by a body equal amount of work which the moving body can perform before coming to the rest, okay, so a kinetic energy possessed by a moving body, okay, kinetic energy possessed by a moving body is equal to the amount of work done, जैसे हम लोग ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि W is equal to क्या है, mgh है, सिमिलरली W is equal to क्या होता है, तुम लोगों का काइनेटिक एनर्जी भी होता है, मतलब जब भी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब भी बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये बॉडी है, समझो ये बॉडी है, वो पर्टिकुलर बॉडी जब तक मूव कर रहा है तो वो वर्क डन कर रहा है, ठीक है, जब तक वो मूव कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर इनिशियल, मतलब उसके पास क्या रहेगा, उसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी है, यस और नो, मतलब बॉडी ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब स्पीड रहेगा, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड पजेस कर रहा है, मतलब ये अगर मार्कर जैसे मैं फेंकने की बात किया, मार्कर फेंक रहा हूं, तो जैसे वो फेंक रहा हूं वो मूव कर रहा है, फिर एक टाइम रेस्ट पे आ जाएगा, यस और नो, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, यस और नो। सो हम लोग को वही बोला है कि वर्क डन is equal to the kinetic energy when a body is in motion, तब तक ही वो वर्क डन कर रहा है, जब तक बॉडी मोशन में है उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी है, और जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वो क्या करता है, वर्क डन करता है, दैट मींस योर वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, यस और नो, यस। सो सेम चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा,
So your work done is equal to your kinetic energy. So work done is what? F into S is equal to your kinetic energy. So kinetic energy is equal to F into S. ठीक है, अभी मैंने कुछ चीज बोला, जब मैं बॉडी को क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ या फिर मूविंग है, तभी उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा u. फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0. बिकॉज बॉडी जब काइनेटिक एनर्जी है उसके बाद बॉडी मूव कर रहा है, याद रखो मूविंग बॉडी है. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते स्टार्टिंग में वो मूव होना स्टार्ट हुआ, ये वो नहीं. जब बॉडी मूविंग है ना तभी काइनेटिक एनर्जी है. स्टार्ट कर रहा है तभी पोटेंशियल एनर्जी होता है. 0 पे ना, हाइट 0 पे है, अभी मूव नहीं हुआ है. चलो मूव नहीं हुआ है, जब मूव होना स्टार्ट किया, कर लिया, जब मोशन में है, डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन इट इज इन मोशन, तब भी क्या होता है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है. मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक v. कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, पता नहीं कितना रहेगा बिकॉज हम लोग अभी डेरिवेशन कर रहे हैं. तो v कंसिडर किया. फाइनल ऑब्वियसली क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकेंड. बोलेगे सर यूनिट नहीं लिख रहे हो सर, मार्क्स कट होगा. यस, मार्क्स कट होगा, लिखना जरूरी है. 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, जब ये मैं मार्कर को फेंक रहा हूं और जब ये वो मार्कर मूविंग है तब उसके पास कुछ वेलोसिटी है v. एंड जब वो मार्कर वहां पे जाके स्टॉप हो गया, तो किसको हिट किया और स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया ना भाई. वो रेस्ट पे आ गया. अरे भाई लोग रेस्ट पे आ गया ना, वो आया ना, समझा. जब कार मूविंग है उसका कुछ वेलोसिटी है, जैसे ब्रेक अप्लाई किया तो वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, बॉडी रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. यस और नो? समझा? ये क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, ये कंसेप्ट क्यों आया. ठीक है, ये चीज याद रखो. क्या करना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं v. इनिशियल वेलोसिटी u है, वो क्या रहेगा? v रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा. फाइनल वेलोसिटी v क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, द काइनेमेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन है, उसमें ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्म में. ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. What is the value of v? 0 square. What is the value of u? u is v square plus 2as. So can I write like this? ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि v square, ठीक है, okay, 0 is equal to v square plus 2as. So can I write v square is equal to क्या? minus 2as. लिख सकता हूँ मैं ऐसे. ये वहां पे चला गया, v square is equal to minus 2as. Yes or no? लिख लिया मैंने, समझा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हम लोग को क्या करना है? s का वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s विल बी हाउ मच? s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a माइनस, यस और नो? s इज इक्वल टू हाउ मच? s इज योर v स्क्वायर बाय, वन सेकेंड, s इज हाउ मच? योर v स्क्वायर बाय 2a. ठीक है, बड़े हैंडराइटिंग में फिर से लिख के देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ भाई लोग, वो तो समझेगा कि यहाँ पे लिखता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, समझा. अभी अगेंस्ट वापस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हम लोगों को मेक श्योर करना है. क्या आएगा? नेगेटिव. ठीक है, याद रखो यहाँ पे नेगेटिव वाला आएगा. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as आया. क्या करना है? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस 2as. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. So v square by 2a is equal to s. समझा कैसे आया? यहाँ पे नेगेटिव वाला आएगा. v square is, अब भी बात किया हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में. ठीक है, नेगेटिव साइन बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी, एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव साइन आया. नेगेटिव साइन, तो ये आया फॉर्मूला. सब्स्टिट्यूट ये s का वैल्यू इनसाइड दिस फॉर्मूला. ठीक है, दिस वी नो, लिख सकता हूं वी नो दैट. ठीक है ना, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. करो, चलो सब्स्टिट्यूट करो. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f की जगह पे कैन राइट f इज इक्वल टू ma. बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है इधर, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. पहले क्या किया? w इज इक्वल टू fe, w fs है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू fs, f इंटू s. ये किया, s का वैल्यू मिला. f का वैल्यू हम लोग को ma पता है. करो सब्स्टिट्यूट, अभी सब करो. ये भी सब्स्टिट्यूट करना है 1 और ये 2 भी करना है. ठीक है, सो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट 1 and 2 in 3. तो ये इक्वेशन 3 बना दिया. चलो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f का वैल्यू कितना है? ma इंटू s का वैल्यू क्या है? s कितना है? v स्क्वायर बाय 2a. a कट, समझा? क्या आया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या है?
kinetic energy is equal to half mv². This is the formula for your kinetic energy. समझा कैसे आया? Yes or no? So this is the formula. Kinetic energy equal to half mv². मतलब kinetic energy is related to mass and velocity because body is in motion. Getting my point? समझा ये कैसे आया डेरिवेशन? समझा तुम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है? क्लियर? Now again we'll come to the what. There are how many types of kinetic energy? जैसे potential energy था, ठीक है, different types of kinetic energy हम लोग ने expression तो derive कर लिया, ठीक है, different types of kinetic energy. There are three types of kinetic energy. First is your translational kinetic energy, मतलब whenever body, simple है, इतना complicated नहीं है, क्या है translation? When a body is traveling in a straight line, चुपचाप, ठीक है, the motion of a body in a straight line, बस, तो car moving, I am walking, ठीक है, you guys are walking, straight line में जो भी रहेगा ना मोशन, वो सबके पास काइनेटिक एनर्जी होता है. वो काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशन एनर्जी बोलते हैं. सेकेंड, रोटेशनल, व्हेन बॉडी इज मूविंग. फैन का एग्जांपल दिया था मैंने, याद है? फैन रोटेट कर रहा है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. एंड ऑफ द डे काइनेटिक, बट उसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बिकॉज वो टाइप है ना, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. या फिर तुम लोग अगर आई डोंट नो, यू गाइज नो के जब सर्कस तुम लोग देखने जाते हो, मैं अपने बचपन में सर्कस देखने जाता था, तभी एक मौत का कुआ करके था कि कार है ऐसा पूरा राउंड कार ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसा स्लाइड होकर ऐसे घूम रहा है. आई डोंट नो, यू गाइज कैन रिलेट और दैट इज आल्सो रोटेशनल एनर्जी. ठीक है, याद रखो. या फिर कार ऐसे ड्रिफ्ट मारे, ठीक है, रोहित शेट्टी का मूवी, ऐसे कार घूम रहा है, क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मूविंग है और रोटेट कर रहा है. ठीक है, फिजिक्स स्पिनर तुम लोग खेला रहेगा हाथ में ऐसा, that is again a rotational kinetic energy. Yes, very good. Then vibrational kinetic energy. If a body moves to and fro, and it means of what? Vibrational kinetic energy. Vibrational kinetic energy is what basically vibrational kinetic energy. मैं example दूंगा, ठीक है? अगर if you have played any time any string instruments, ठीक है, कौन सा? String instruments, ठीक है. See, if you guys know guitar or let's say any sitar or violin or let's say any string guitar, so when you pluck a particular string, वो vibrate होता है. ठीक है, vibrate होता है, move हो रहा है. सबसे पहले important move हो रहा है, वो string ऊपर नीचे move हो रहा है. ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं है तो जाओ YouTube पे टाइप करो, ठीक है, string vibration. तुम लोग को एक वीडियो आएगा जहाँ पे गिटार के अंदर कैमरा है एंड वो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है एंड मूव हो रहा है ऊपर नीचे, तुम लोग को दिखेगा. समझा? वाइब्रेट होना मतलब वो मूव हो रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है, राइट? अगर अभी भी नहीं समझा, घर पे लो, यहाँ पे कुछ ऐसा नेल वेल डाल दो, यहाँ पे स्टिक कर लो, ठीक है, और उसको खींचो ऐसा, एंड यहाँ पे जो थ्रेड है उसको जोर से हिट करो तो वाइब्रेट होगा. यस और नो? इट इज वाइब्रेटिंग, राइट? सो दैट इज नोन एज अ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो देयर आर हाउ मेनी 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी हैव डिस्कस्ड. First was your which kinetic energy? Let me check. Which kinetic energy? Yes or no? A vibrational kinetic energy. Yes or no? So we have discussed. Yes or no? Clear? Yes. समझा? Yes. Now the next is what basically 3 types तो सीख लिया हमने. ठीक है, we are done with 3 types. ठीक है. Now we are coming to what basically the next topic. जहाँ पे there is a relation between your momentum and kinetic energy. Kinetic energy and momentum. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मतलब क्या होता है ना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं. अगर तुम लोग ने ओलंपिक्स गेम देखा है या फिर कभी रनिंग रेस किया है या फिर रिले मैचेस खेले हैं, सो वहां पे क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट यू टेक सम मोमेंटम, राइट? लॉन्ग जंप, ठीक है, चलो एग्जांपल देते हैं कि रेनी सीजन, सब एग्जांपल छोड़ दो, ओलंपिक्स वो सब का बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा. सिंपल, लेट्स से रेनी सीजन है, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉटहोल है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, पॉटहोल तो रहेगा ही. ठीक है, इतना बड़ा पॉटहोल है, क्या करना है तुम लोग? पॉटहोल को पार करना है. ठीक है, तुम लोग स्कूल जा रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारे क्लॉथ है वो गंदे नहीं होने चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए. तुम लोग क्या करते हो? सीधा जंप नहीं मारते, यू गो 2-3 steps back, then run and then jump. That means you are creating a momentum inside your body. ठीक है, you are going back, gaining some momentum and then going there. Yes or no? Are you guys understanding this point clear? Yes. Yes. Sorry for inconvenience. Yes. So that means I am going back
and I am coming and jumping, that is known as a momentum. So formula for momentum is denoted by P, ठीक है, and momentum का formula m into v. V नो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर. दोनों के बीच में रिलेशन करना है, क्या रिलेशन है? सो व्हाट आई कैन डू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर can I rearrange this point? M is equal to P by V. So, correct. So, M is equal to P by V. Can I substitute यहाँ पे P by V? I can do that, right? So, what I'll do, I'll substitute here. So, kinetic energy is equal to half P by V, V square. समझा? V कट हो गया, दोनों वेलोसिटी है. So, क्या आ जाएगा तुम लोग का? Kinetic energy is equal to half. क्या हो जाएगा तुम लोग का? हाफ P. समझा नहीं समझा? क्लियर है? बस दिस इज द रिलेशन यू नीड टू फाइंड आउट. क्लियरली समझा कैसे है रिलेशन? यस और नो? So this is the first formula. So kinetic energy is what? Kinetic energy is what? PE by 2. First relation. ठीक है, ये first relation मिल गया तुम लोग को. Kinetic energy is what? PE by 2. ठीक है, मैंने क्या किया, मोमेंटम का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट किया. समझा? तभी मुझे क्या मिला? फर्स्ट रिलेशन. कैन आई डू द ऑपोजिट थिंग? कैन आई सब्स्टिट्यूट ये इसके अंदर? आई कैन डू दैट, राइट? सो ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट रिलेशन. यहां पे लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? पीवी बाय 2. ये फर्स्ट रिलेशन है. ठीक है, सेकेंड रिलेशन क्या है? वापस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, देन p इज इक्वल टू व्हाट? mv. यस और क्या करूंगा मैं यहाँ पे? 2 काइनेटिक एनर्जी ओके फाइन. सो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या करूंगा? ये 2 उधर चला गया, अपॉन क्या करूंगा? m इज इक्वल टू क्या है? v स्क्वायर. यस और नो? है v स्क्वायर. समझा? अभी मेरे पास v स्क्वायर है, गेटिंग माय पॉइंट, और यहाँ पे क्या v है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट. सी ओके, सो यहाँ पे v स्क्वायर चाहिए मुझे. यहाँ पे क्या करूंगा? थ्रू आउट स्क्वायरिंग कर सकता हूँ मैं. क्या करूंगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर. अब कैन आई सब्स्टिट्यूट ये v स्क्वायर का वैल्यू हियर? कैन आई सब्स्टिट्यूट दैट? यस आई कैन, राइट? सब्स्टिट्यूट v स्क्वायर हियर. सो मैं सब्स्टिट्यूटिंग, मैं पर्पसली यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, ओके, बिकॉज यहाँ पे v स्क्वायर था. ठीक है, सो क्या आएगा तुम लोगों का? p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m. mm कट, सो योर p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m. यस और नो? और आइदर आई कैन राइट इसको p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m. गेटिंग माय पॉइंट? बस सिंपल, इतना कुछ नहीं. इसको स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितने रिलेशन आए? ये रिलेशन नंबर 2 हो गया और रिलेशन नंबर 1 हो गया. बोथ आर करेक्ट, यू कैन यूज बोथ द वेज. ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा. क्लियर है? समझा? सो दिस वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? योर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. यस, क्लियर? ओके, now the last topic which is pending, which is your work energy theorem. So what exactly work energy theorem? बहुत ज्यादा important है ये theorem. ऑलमोस्ट अल्टरनेट पेपर 10th स्टैंडर्ड में आता है. ठीक है, सो मेक श्योर तुम लोग को ये अच्छे से समझे. सो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थियरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय, क्या लिखा है? वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी. ठीक है, वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी. ठीक है, जो वर्क डन कर रहा है, दैट इज इक्वल टू इट्स व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, इंक्रीज मतलब चेंज ही हो गया ना एक टाइप का. मतलब तुम लोग को क्या फाइंड करना पता है? दैट योर W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या बोला है कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी व्हाइल मूविंग इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सेम चीज, मार्कर का एग्जाम, मार्कर है, मैं थ्रो कर रहा हूँ. वर्क डन कभी करेगा जब वो मार्कर मूविंग है. काइनेटिक एनर्जी कभी देगा कभी मूविंग है. उन्होंने स्टेटमेंट का बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. कभी जब वो मूविंग है,
बट वो जब भी मूविंग है इट इज कमिंग टू अ रेस्ट एंड ऑफ द डे, राइट? हम लोग ने क्या इसके पहले का पढ़ा ना, मेरा u इज इक्वल टू क्या रहेगा v, फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, मतलब कुछ एनर्जी है जब भी मूविंग है, फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये चेंजिंग वेलोसिटी मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, मेरा मास और मेरा ये मास तो कांस्टेंट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यस आई कैन राइट लाइक दिस, यस और नो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, जब बॉडी मूव हो रहा है और जितना वर्क डन कर रहा है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन इट्स वेलोसिटी, एक ही चीज हुआ, राइट? बिकॉज ये दोनों तो ये पूरा कांस्टेंट है, चेंज होगा तो यही चेंज होगा, समझा नहीं समझा, क्लियर है? सो ये प्रूफ करना है हम लोग को, ये जो है ये हम लोग को प्रूफ करना है कि कैसे आ रहा है। लेट्स प्रूफ, कैसे? लेट्स प्रूफ, चलो तो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 नहीं लेंगे, ओनली चेंज, जो पहले हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किया, वहां पे हम लोग ने क्या किया था, u इज इक्वल टू v लिया था, v इज इक्वल टू 0 लिया था, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे ये ऐसे, बिकॉज हम लोग को रेस्ट पे नहीं रहना, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि बिटवीन मूविंग एंड एंडिंग कितना एनर्जी है और उतना उस पर वर्क डन कर रहा है, वो कैलकुलेट करना, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ इसके बाद का। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अभी हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम करना है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोला, वी हैव टू प्रूव दैट w इज इक्वल टू क्या है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है? हम लोग ने जब काइनेटिक एनर्जी किया तभी काइनेटिक एनर्जी में क्या किया हम लोग ने, v इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है? वी हैड यूज्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। नाउ यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्यों माइनस 2as है? बिकॉज v 0 है एंड u इज इक्वल टू सम वेलोसिटी, लेट्स से u था तुम लोग का, लेट्स कंसीडर 20 मीटर पर सेकंड, लेट्स कंसीडर। तो ये क्या है, रिटार्डेशन है ना भाई, कि बॉडी के पास कुछ इनिशियल है, फाइनल क्या है 0 है मीटर पर सेकंड, तो ये रिटार्डेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, इसलिए हम लोग ने लिया, क्लियरली समझा? बट यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग को फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं करना है, बट फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं करना है, दैट मीन्स मेरा मैं जो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करूंगा वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, यस और नो, सेम। फिर w इज इक्वल टू क्या आएगा, f इंटू s, ये तो पता ही है, ठीक है? क्लियर किया मैंने कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी, ठीक है? whatever kinetic energy a body has, ठीक है? whatever kinetic energy body has while moving, ठीक है, while in motion is equal to the what amount of work done, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वही उतना ही अमाउंट ऑफ उसको वर्क डन करेगा, तो हम लोग को वही प्रूफ करना है। क्या करूंगा यहाँ पे, f इज इक्वल टू क्या डालूंगा, ma डाल दिया, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, ये प्रूफ करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये तुम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है? सो क्या कर सकता हूं मैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू s, ये s यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2as, a कट हो गया, क्या बच गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था भाई लोग, w इज इक्वल टू ये है ना, w वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू वर्क डन, हो गया प्रूफ हम लोग का। तो क्या किया, वापस w इज इक्वल टू fs लिया, ठीक है? ये काइनेमेटिक इक्वेशन लिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया, रीजन समझाया मैंने क्यों नहीं लिया, मेरे को वेलोसिटी 0 नहीं करना है, मतलब वो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है, समझा नहीं समझा? अभी भी मूविंग है, ठीक है? मूविंग है, वेलोसिटी स्टॉप, बॉडी स्टॉप नहीं हुआ है, व्हाइल मूविंग, ठीक है? व्हाइल मूविंग मतलब वेलोसिटी 0 नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, वहां पे नेगेटिव क्यों, बिकॉज वेलोसिटी 0 हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज योर वर्क एनर्जी, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? 3 स्टार क्वेश्चन है ये, 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है? याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज योर ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? अभी लास्ट चीज है जो है तुम लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इतना सब एक्सप्लेन किया है तो ऑब्वियसली तुम लोग वो लिख सकते हो, बट इट्स बेटर नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है? आई विल टीच एवरीथिंग, यस और नो,
डोंट वरी. सो द लास्ट थिंग क्या बोला है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. इट इज द एनर्जी पजेस्ड, दोनों का डेफिनेशन लिखो पहले. एनर्जी पजेस्ड, ठीक है, वर्च्यू ऑफ व्हाट, चेंजिंग पोजीशन. काइनेटिक एनर्जी वर्च्यू ऑफ व्हाट, इट्स इन मोशन. इट इज इक्वल टू क्या है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द बॉडी चेंजिंग स्टेट. ठीक है, मतलब उसका स्टेट चेंज कर रहा है. यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रेस्ट पे लेकर, मोशन में है, रेस्ट पे लेके आ. क्लियरली समझा. सेकंड पॉइंट इज अबाउट व्हाट, कि वर्क डन के साथ दोनों का इक्वेशंस क्या है. थर्ड पॉइंट, इट कैन चेंज ओनली इन द वर्ड फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड ओनली इन काइनेटिक. मैंने क्या एग्जांपल, स्प्रिंग का एग्जांपल दिया भाई लोग. कभी मैं थोड़ा अटक गया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया. क्यों, इधर ये स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया. अभी ये जो डिफॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसके पास है, वो किसमें कन्वर्ट होने वाला, ओनली काइनेटिक एनर्जी. ओनली काइनेटिक एनर्जी में ही हो सकता है कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी, और किसी में नहीं हो सकता. समझा. बट काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी. ठीक है, हीट एनर्जी सब में हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी एनर्जी. विंड एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जैसे विंड में घूमते हैं तभी वैसा. ठीक है, so they can be converted into any form, any other form. Kinetic energy can be converted to any other form. This can only be converted to kinetic energy. Last point, it does not depend on speed. Simple. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, mgh है. स्पीड यहाँ पे does not depend on speed. Kinetic energy half mv square. स्पीड है, that means it depends on speed, it does not depend on speed. ठीक है, yes or no. So we are done with what kinetic and potential energy. I am winding up this lecture. Next lecture we're going to discuss about the conversion, all the conversion from one energy to another energy. Already देख लिया कि potential only can be converted to kinetic, but kinetic भाई किसमें किसमें होगा, डिटेल में सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर? थैंक यू.